product enough to take care of PDS requirement as well as any emergency requirement, if any. As you all know, the NFSA Act, that is National Food Security Act, ensures continued access to food grains for vulnerable populations. Other than food security, we also maintain, we also do market interventions to ensure that prices of food grains in market is stable. That is done through OMSS, Open Market Sales Scheme. So in this, FCI releases surplus wheat and rice in open market to augment supply, stabilize prices and contain inflation. As you know, in both the commodities right now, there is absolutely no hike in prices for over last 1 year. Adequate stocks are available with FCI for such interventions. And in this scheme, we are also giving subsidized rice under state scheme. So other than NFSA, if states want to give additional rice to their under their state scheme, that is also available. Now regarding procurement under RMS 2627, procurement of wheat under MSP operations has already started, primarily through the state agencies. The department is regularly reviewing preparedness in coordination with states. Adequate packaging material is also being ensured for the procurement operations. So proactive steps have been taken to ensure availability of packaging material. The department, in consultation with MOPNG and DCPC, is diversifying packaging sources and maintaining contingency measures to address any shortfall. Edible oil scenario. So domestic availability of edible oil remains comfortable despite global uncertainties. Imports from key partners is continued steadily, and our key partners include Indonesia, Malaysia, Russia, Ukraine, Argentina and Brazil. Improved mustard production has strengthened domestic supply. Overall supply remains stable. The government will continue to monitor this closely and will intervene if required. Regarding the sugar sector, adequate sugar buffer stock is available. Sugar production in 25-26 is expected to remain sufficient. 15.80 LMT of sugar has been permitted for export, with 3.73 LMT exported so far. Exports are primarily to Sri Lanka, West Asia and East Africa. Retail prices have also remained stable with very low inflation of around 3% over past 3 years. Thank you. Thank you, Krishika ji. Now over to Sujata ji. नमस्कार. आज लगभग 35 दिन से ज़्यादा हो गए हैं मिडल ईस्ट क्राइसिस को शुरू हुए, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़रूरत का एलपीजी की ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से ही आता था, इसलिए हमारी सप्लाईज पर इफेक्ट हुआ. परंतु भारत सरकार ने हर संभव प्रयत्न किया है ये इंश्योर करने के लिए कि जनता को कम से कम कठिनाई हो, और इसके चलते ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एलपीजी की सप्लाई पर्याप्त है और एडिशनल कार्गोज भी टाई अप किए गए हैं. पिछले दिनों इनफैक्ट रेगुलरली सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स जैसे सर्कुलेट होती हैं कि सप्लाईज को लेकर. इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 2 दिनों से ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के, ऑयल एंड गैस कंपनीज के सीनियर लीडरशिप्स इंक्लूडिंग CMDs वो फील्ड में जा रहे हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं. इसके अलावा राज्य सरकारों से भी लगातार मीटिंग की जा रही है, बात की जा रही है ये इंश्योर करने के लिए कि सप्लाईज स्मूथ हो, और अगर कहीं पर भी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग जैसी कोई गतिविधि हो रही है तो उसे तुरंत रोका जाए. मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. हम लगभग 50 लाख सिलेंडर हर रोज़ दे रहे हैं. पिछले 5 हफ्ते में लगभग 18 करोड़ घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है. हमारी ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड हाई 97% पर है. डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड या OTP की व्यवस्था की गई है, और अब लगभग 90% डिलीवरी इस OTP कोड के द्वारा ही की जा रही है. हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन भी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स को खोले हैं ताकि सभी को एक स्मूथ एलपीजी डिलीवरी हो पाए.
कमर्शियल एलपीजी के बारे में जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन 70% इंक्रीज़ किया, क्योंकि वॉर के चलते हमारी एलपीजी सप्लाईज अफेक्ट हुई थी, इसलिए डोमेस्टिक घरेलू उपभोक्ता को प्रायोरिटाइज किया गया, जिसके चलते कमर्शियल एलपीजी में कुछ कटौती की गई। लेकिन पिछले 3 हफ्तों में लगभग 79,900 टन्स कमर्शियल एलपीजी बेची गई है, और अगर इसको 19 किलो सिलेंडर में मैं कन्वर्ट करूं तो इसकी संख्या होती है लगभग 42 लाख सिलेंडर। सो 42 लाख 19 किलो के सिलेंडर कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी दिए गए हैं। 5 किलो के छोटे सिलेंडर को लेकर भी कुछ रिपोर्ट आ रही थी, उसके संबंध में काफ़ी स्टेप्स भी लिए गए हैं। 5 किलो के सिलेंडर में मैं के बारे में भी आपको मैं कहना चाहूँगी कि सफिशिएंट स्टॉक है, और वैलिड आईडी प्रूफ के साथ उपभोक्ता अपने नियरेस्ट एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर 5 किलो का सिलेंडर ले सकता है। किसी भी एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 दिनों में लगभग 5,500 अवेयरनेस कैंप लगाए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। इन 550 अवेयरनेस कैंप में लगभग 6,700 5 किलो के सिलेंडर्स भी दिए गए हैं, बेचे गए हैं। पिछले 14 दिन में 6,75,000 से ज़्यादा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 5 किलो के सिलेंडर का एवरेज सेल जो पर डे था फरवरी के महीने में, वो लगभग 77,000 सिलेंडर था, और यही सेल कल 4 अप्रैल को 90,000 से अधिक थी। सो इस डाटा के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सफिशिएंट नंबर में 5 किलो के सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, कन्वीनियंटली अवेलेबल हैं, और सेल भी ऑप्टिमम नंबर्स में हो रही है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि एलपीजी से प्रेशर रिड्यूस करने के लिए पीएनजी को प्रमोट भी किया जा रहा है, और पीएनजी में भी डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट करते हुए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। इसी तरह सीएनजी व्हीकल्स के लिए भी 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। यूरिया प्लांट 70 से 75% सप्लाई पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स the availability of gas supply to fertilizer plants will be increased to approximately 90%. इसी तरह CGD नेटवर्क्स को भी 10% एडिशनल गैस देने की बात कही गई है। 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते फॉर पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते एडिशनल 10% एलपीजी प्राप्त कर रहे हैं, और एक एप्लीकेशन अभी अंडर एग्जामिनेशन है। मार्च महीने में लगभग 3,67,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैस दिया गया है, और लगभग 4 लाख नए उपभोक्ता भी रजिस्टर हुए हैं। पेट्रोल पंप्स के संबंध में भी हमारे सभी पेट्रोल पंप्स पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है, और कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। घरेलू उपभोक्ता को प्राइस राइज से बचाने के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। सप्लाईज को इंश्योर करने के लिए एक्सपोर्ट लेवी भी लगाई है, और हमारे यहाँ पर जो फ्यूल का दाम है वो हमारे पड़ोसियों के मुकाबले काफ़ी कम है। ऑटो एलपीजी के संबंध में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी, उस संबंध में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पंप पर
LPG पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि कुछ प्राइवेट पंप्स पर LPG उपलब्ध नहीं है। इसके कारण वो मार्केट भी हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ऊपर शिफ्ट हो गई है, परंतु वहाँ पर सप्लाईज है और लोगों को दी जा रही है। क्रूड इन्वेंट्रीज सफिशिएंटली टाइड अप है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि